Hello guys, welcome to an Academy Catalyst. Please hit the like button and subscribe to the channel. In today's session for an Academy Catalyst, we will be discussing work and time, and we will be starting from very basics. So students who want to learn work and time from basics can go through the session. I'm Shashant Rathore, and before starting the session, some important information regarding an academy and an academy catalyst. You can follow an academy catalyst, an academy catalyst YT, and an academy catalyst learner on Telegram, which are the official channels where you will be getting notified for all the classes, courses, and all the upcoming an academy catalyst YouTube sessions, as well as you will be getting notified for all the quizzes which are getting conducted by an academy educators daily on an academy app. Now, some important information regarding Unacademy. The new batches which are getting launched on Unacademy for CAT 2022 and NMAT and CAT 2021. As you can see, from 25th of August, aim for CAT 2022 and OMATs has already started, in which Harsha sir, Shruti Kaura ma'am, Sagar Thakkar sir, Sameer Ahmed sir, and conducting the classes. And from 28th of August, we have Aspire for CAT 2022 and NMAT 3.0, in which Amit Surana sir, Dipanshu Garg sir, Juhi Narula ma'am, and S. Satish Kumar sir are conducting the classes. And from 28th of August, again, we have Practice Drill 3.0 for CAT 2021, in which Bhagyashree ma'am, Lokesh Agarwal sir, Krishma ma'am, and Parikshit sir are conducting the classes. If you have Plus or Iconic subscription, then you can directly go into the app or website and enroll into these batches. If you don't have one, then you can subscribe to an academy using my referral code Rathore Live, through which you will be getting a 10% off. Then we have all the Plus subscriptions for MBA aspirants. Best pick for CAT and OMAT 2021. If you want to buy a subscription now, then and want to cover OMATs also, then you can go for 6 month subscription, for which you have to pay 16,400. And for CAT 2022 and CAT 2023, we have an offer in which you will be getting 3 months free for both while subscribing to 12 months and 24 months subscription. Again, best fit for CAT and OMAT 2022. If you are planning for 2022, then you can go for 18 month subscription, in which you will be getting a 54% off. Subscribe now. The price is 28,550, and while enrolling, you can use my referral code Rathore Live, through which you will be getting a 10% off, as well as you can use the coins which you are getting while watching special classes. Then we have Iconic subscription for MBA aspirant, 6 month Iconic subscription for CAT 2021, and 12 month Iconic subscription for 39,500, and 24 month Iconic subscription for 60,000. Live mentoring for MBA aspirants. All benefits of Plus are included. 1:1 live doubt solving by expert, 1:1 live concept discussion, 1:1 live mentorship by top B school graduates, and your mentor will be guiding you throughout your preparation. You can book slots as per your convenience, and whenever you are free, you can discuss exam strategy also, which all exam you should give depending upon your interest, and so on. Then MBA 2021 mock test marathon, last push to your preparation. Basically, it's time to give more and more mocks. 2 full-length mock tests for CAT per week, 3 sectional tests, LRDIQ and VRC, 1 test each per week, 2 full-length mock tests for OMATs per month, and detailed video analysis of all mocks and sectional tests. You can enroll now. Best pick for CAT and OMATs 2001, Iconic 6 month subscription for 25,800. While enrolling, again, you can use my referral code Rathore Live, through which you will be getting a 10% off. Then a big surprise awaits you. An Academy CAT Mega Combat is here for you. This time we hope you get lucky. Basically, this time the top 250 participants will be rewarded with big prizes. So you can enroll it for free. And while enrolling, again, you can use my referral code Rathore Live, through which you can enroll for completely free. Okay, guys, let's start with the topic work and time. Every year and in CAT as well as OMAT, you find questions of work and time. वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन जनरली जो आपके आते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं. बेसिकली जो टाइप है नॉर्मली नंबर ऑफ डेज,
required to finish a task. Second, number of person required, number of men or women or children. Third, work equivalence method पे क्वेश्चन आते हैं. फोर्थ यू हैव आपका ऑल्टरनेट डे वाला जो क्वेश्चन होता है जिसमें लोग अलग अलग दिन काम कर रहे होते हैं. फिफ्थ यू हैव क्वेश्चन ऑफ पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो कि पेमेंट किसको किस हिसाब से पेमेंट मिलेगा, पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन. एंड सिक्स्थ यू हैव पाइप एंड सिस्टम या टैंक भी बोल सकते हैं. तो ये 6 टाइप के क्वेश्चन जनरली आपके आते ही आते हैं. एंड इन हाउ मेनी वेज यू कैन सॉल्व अ क्वेश्चन. Either you can use efficiency method. In how many ways you can solve a question? Either you can use efficiency method. Second, you can go for reciprocal method. Third, option elimination also works. ये 3 ways हैं जिसमें आप ways to solve क्वेश्चन, ये 3 वेज हैं आपके जिसमें आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. आई विल बी यूजिंग एफिशिएंसी मेथड मोस्ट ऑफ द टाइम, चाहे वो आपका 5 पॉइंट सिस्टम हो, पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट हो, वर्क इक्विवेलेंस. वर्क इक्विवेलेंस में शायद ना भी यूज करें, बट नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू फिनिश अ टास्क और नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश अ टास्क, इन सब में जो जनरली क्वेश्चन है आई विल बी यूजिंग एफिशिएंसी मेथड. आई एम कंफर्टेबल इन दिस मेथड मोस्ट ऑफ द टाइम. ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरा फेवरेट मेथड क्वेश्चन सॉल्व करने का एफिशिएंसी मेथड ही है. ओके, अगर हम एफिशिएंसी मेथड की बात करते हैं, इफ सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी मेथड, अगर मैं एफिशिएंसी मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं तो टोटल वर्क जो होगा वो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आई विल बी टेकिंग इट एज 100%. हमेशा का रूल है. अगर एफिशिएंसी मेथड यूज करने वाला हूं तो टोटल वर्क इज इक्वल टू 100%. और अगर मैन इनटू डेज या टोटल वर्क वाला है, और अगर टोटल वर्क और वर्क इक्विवेलेंस मेथड निकालना है तो नंबर ऑफ मैन इनटू डेज से मेरे को टोटल वर्क मिल जाएगा. तो ये 2 चीजें हैं. और अगर हम एफिशिएंसी मेथड को आगे कह रहे हैं, सपोज देयर इज अ पर्सन, मैं अपना नाम ले लेता हूँ शशांक, finishes a task in 10 days. For example, Shishant finishes a task in 10 days. अगर शशांक एक टास्क 10 डेज में फिनिश करते हैं तो इसका मतलब है एफिशिएंसी ऑफ शशांक. ई से हम एफिशिएंसी को डिनोट करेंगे. Either it can be used by efficiency or it can be shown by eta. So efficiency of Shashank will be 100 जो टोटल वर्क होगा डिवाइडेड बाय डेज. अब यहाँ पे डेज कितने हो गए, 100 डिवाइडेड बाय 10. तो कितने डेज हो गए, 10 डेज से डिवाइड किया तो जो एफिशिएंसी आएगी 10%. मतलब वर्क डन बाय शशांक each day is equals to 10%. तो अगर मैं 7 डेज काम करूंगा तो जो वर्क होगा वो 70% होगा. अगर मैं 8 डेज काम करूंगा तो जो वर्क होगा वो 80% होगा एंड सो ऑन. तो ये मेथड मुझे बहुत इजी रहते हैं रेसिप्रोकल के मुकाबले, तो कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं. तो एंड टोटल वर्क वाला मेथड मैन इनटू डेज,
अगर आवर भी दिया होगा तो मैन इंटू डेज इंटू आर भी कर सकते हैं कि टोटल वर्क कितना हुआ है। इफ आवर इज गिवन, अगर यहाँ पे हमें आवर इज गिवन फॉर ईच डे, तो जो मैन इंटू डेज इंटू आर ईच डे इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। सिंपल से नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो होता है हमारा, हम उसी पे काम करेंगे। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ। जैसे अब हमारा पहला क्वेश्चन है, if 20 persons can do a piece of work in 7 days, then calculate the number of persons required to complete the work in 28 days. 20% डेज गिवन है, तो हमें सेकेंड नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे सर्च करना है। तो अब यहाँ पे जो मेथड यूज होगा वो वर्क इक्विवेलेंस होगा। जो आपका टोटल वर्क होने वाला है वो दोनों केसेस में इक्वल होगा। जो हमारा वर्क इक्विवेलेंस मेथड है उसमें अगर हम नंबर ऑफ मैन M1 को 20 लें, डे 1 को 7 लें, तो M2 हमें फाइंड करना है, जो हमें नहीं पता, लेट इट बी x, एंड D2 हमें पता है 28। तो वर्क इक्विवेलेंस मेथड के अकॉर्डिंग टोटल वर्क जो है इन बोथ द केसेस शुड बी इक्वल। तो 20 इंटू 7 शुड बी इक्वल टू x इंटू 28। अब इजीली निकल जाएगा, x 5 आ रहा है, तो जो ये वाला आंसर था फाइंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ पर्सन, तो हमारा M2 कितना आ गया, 5। डायरेक्ट ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डन होता है। तो वर्क इक्विवेलेंस मेथड का पहला सिंपल एग्जांपल। नेक्स्ट, अब आ गया अब सेकंड क्वेश्चन। इफ 25 men can do a piece of work in 36 days working 10 hours a day। अब देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, men भी गिवन है, डेज भी गिवन है और आवर्स भी गिवन है। तो men अगर हम केस 1 लें तो 25 men 36 days एंड 10 hours। केस 2 आवर्स हमें पता है कितना हो गया 6, डेज भी हमें पता है कितना हो गया 20। तो men कितना लेंगे, हमें men ढूंढना है, तो men को M2 ले लो, ये हमारा M1 हो गया, ये D1 हो गया एंड ये H1 हो गया, ये H2 हो गया, ये D2 हो गया और M2 हमें ढूंढना है। तो वही फॉर्मूला लगेंगे, M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। So 25 into 36 into 10 should be equal to M2 into 20 into 6। यहाँ से हमें M2 की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्ट 6 6। तो M2 जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 75%। तो जो M2 है हमारा वो कितना आया 75%। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अगेन इट इज बेस्ड ऑन वर्क इक्विवेलेंस मेथड। तो हमने दो जो शुरू के एग्जाम्पल लिए वो वर्क इक्विवेलेंस मेथड पे लिए, एंड दिस क्वेश्चन कैन बी इजीली आपको ये एनमैट में, स्नैप में, सीमैट में, उन एग्जाम से मिलेगा। कैट में तो नहीं आने वाला, बट बेसिक्स जो होते हैं वो तो सेम ही है। तो आगे बढ़ते हुए अब ये क्वेश्चन आ गया कि आप कितने डेज में अपना काम खत्म करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, A can finish a piece of work in 12 days while B can do it in 15 days. If both work at it together, what time will they take to do the work? कितना टाइम। अब ये आ गया, अब मैं एफिशिएंसी वाले मेथड से करूंगा। फॉर एग्जांपल लेट जो हमारा टोटल वर्क होता है उसको मैं ले लेता हूँ 100%। ए कितने दिन काम कर रहा है, ए टेक्स 12 days टू कंप्लीट 100%।
तो इन 1 डे जो एफिशिएंसी ऑफ ए होगा वो कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 12, वो आपका रहेगा 8.33%। सिमिलरली अगर हम बी के लिए चेक करें, अब बी टेक्स 15 डेज टू फिनिश 100% ऑफ द वर्क, करेक्ट। अब बी 15 डेज ले रहा है, तो इन 1 डे efficiency of B is equals to 100 divided by 15, 6.66% आ जाएगा। अब if they work together, if they work together, efficiency A plus efficiency of B is equals to, if you add them, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपका 15% आ जाएगा। तो डेज अब कैसे निकालेंगे, डेज इज इक्वल्स टू टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, तो 100 divided by 15, so which is similar to 6.66 days, or you can say 6/2 days। अगर efficiency इसी मेथड से कर रहे हैं तो हमारा आंसर सी आता है, which is the correct answer। तो efficiency मेथड मुझे कंफर्टेबल रहता है because we know exactly कि क्या करना है और कैसे करना है। Okay guys, moving on towards the next question here. A can do a piece of work in 24 days. If B is 60 more percent efficient than A, then the number of days required by B to do the same piece of work is obviously कम होने वाला है। A का पता है 24 डेज है, B 60% मोर एफिशिएंट, तो A की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, उसका 60% निकाल के उसी में ऐड कर देंगे, करेक्ट। करने का तरीका यही है। अब जैसे A है, टोटल वर्क अगेन मैं सेम ही तरीके से करूंगा। टोटल वर्क को इफ आई अज्यूम मेरा टोटल वर्क कितना आएगा 100%, करेक्ट। अब A टेक्स 24 डेज, ठीक है, टू डू 100%, तो एफिशिएंसी ऑफ A इज इक्वल टू 100/24। अब यहां से जो इसकी एफिशिएंसी आ जाती है कितनी आएगी, 24 4 96, 4.16%। अब अगर मैं एफिशिएंसी ऑफ बी को देखूं तो एफिशिएंसी ऑफ बी 60% मोर, तो एफिशिएंसी ऑफ बी डायरेक्टली 1.6 इंटू 4.16, क्योंकि 60% मोर है तो अगर उसका 100 है तो उसका 160 हो जाएगा, तो 1.6 हो गया। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 6.66%। अब अगर आपको नंबर ऑफ डेज बताने, नंबर ऑफ डेज बाय बी, नंबर ऑफ डेज बाय बी, तो टोटल वर्क कितना था 100% डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी 6.66%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज 15 डेज। ऑब्वियसली रिड्यूस तो होना ही था क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा थी, तो 15 इज द करेक्ट आंसर। तो ये एफिशिएंसी वाला एक केस। नेक्स्ट, अब जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्क बी वाला। सिंपल क्वेश्चन है गाइस ये वाला भी। ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। अगर हम इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी देखें, मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए, अब टोटल वर्क अगेन सेम है। अगर हम टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क कितना होगा 100%। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कैसे निकालेंगे, जब टोटल वर्क को 100 को 14 से डिवाइड करेंगे, तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी जो हमारा आएगा वो आएगा 14 से बनता है 98, 7 पॉइंट सम परसेंट आएगा।
करेक्ट। अब efficiency of A is equals to twice of efficiency of B। अगर इसको x मान लें तो EA कितना आ जाएगा 2x। लेट EB be equal to x, तो ये 2x आ गया, तो x plus 2x is equals to 7.14%। इसको सॉल्व करते हैं तो 3x is equals to 7.14%। अब x की जो ओरिजिनल वैल्यू आएगी वो आएगी 2 पॉइंट समथिंग। अब जो हमारा x है वो आने वाला है 2 पॉइंट समथिंग। 3 to the x 3 is 9 2 3 8। तो एफिशिएंसी ऑफ ए, अब हम एफिशिएंसी ऑफ ए देखेंगे तो हो जाएगा 4.76%। तो डेज टेकन बाय बी कितना हो जाएगा, डेज टेकन बाय बी अगर हमें बी के लिए निकालना है तो 100 डिवाइडेड बाय 2.38 एंड डेज टेकन बाय ए निकालना है 100 डिवाइडेड बाय 4.76%। अब अप्रोक्सीमेटली 25 तो नहीं आएगा देखा जाए तो 25 से तो कम ही होने वाला है। तो 4.76 से अगर इसको डिवाइड कर दें तो योर आंसर शुड बी 21 डेज। तो विच इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 0.76 भी है तो 0.76 इज मोर देन 0.5, तो ऑब्वियसली डेज कम होते जाएंगे। अगर 4 होता तो 25, तो वो वाला रिलेशन लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था। A takes 4 5 by 5 days as B takes, and working together they require 20 by 3 days to complete the whole work. What is the efficiency of B? सिंपल है, ए और बी का कंबाइंड डेज दे रखा है। जब अगर हम सॉल्यूशन देखने लेंगे तो सेम, अब इसमें भी सेम करते हैं। टोटल वर्क को अगर हम लोग 100% ले लेते हैं तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कंबाइंड 100 डिवाइडेड बाय 20/3 अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा 100 into 3 divided by 20 which is equal to 15%। A takes 4 by 5 days as B, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ डेज अगर हम A और B का रेशियो लेते हैं तो वो आएगा 4:5। ऑब्वियसली B ज्यादा लेगा तो जो एफिशिएंसी होगी उसका रेशियो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ डेज ज्यादा लेगा उसकी एफिशिएंसी कम आएगी और जिसका नंबर ऑफ डेज कम होगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा आएगी। तो सपोज वो रिवर्स हो जाता है। देयरफॉर अब एफिशिएंसी ऑफ बी कैलकुलेट करना है। एफिशिएंसी ऑफ बी को टोटल एफिशिएंसी 9 इंटू 15, तो आपका आ गया 20/3 which is equals to 6.66%। इट इज सिमिलर टू ए। तो एफिशिएंसी वाला जो क्वेश्चन है, मतलब जो तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है, कैलकुलेशन इजी रहती है, जनरली ज्यादा प्रॉब्लमैटिक कैलकुलेशन आती है। रेसिप्रोकल में काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, एलसीएम में बाकी कोई इशू भी आ सकता है। तो वो हम जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी और रेसिप्रोकल वे और ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी आएगी, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट एफिशिएंसी मेथड लगाते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी और टोटल वर्क को हम कितना लेंगे, टोटल वर्क हमारा भाई 100%। अब एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी निकालते हैं तो 100 डिवाइडेड बाय 8 करना पड़ेगा, वो आएगा 1296। 4 बचा, 8 5 सा 40, तो 12.5 आ गया। सिमिलरली अब हम एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी निकालते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 12, 12 8 सा 96,
ज्यादा बचेगा, 12 3 36, 8.33%। लास्ट, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी हो गया, बी प्लस सी हो गया, अब कौन बचा, ए प्लस सी। ए प्लस सी का भी अगेन 8 डेज दे रखा है, तो अब ये तो डायरेक्ट है हमारे पास, 100 divided by 8 is equals to 12.5%. In how many days can A, B and C complete the whole work working together? Working together 1 2 3। अगर हम 1 plus 2 plus 3 ऐड कर देते हैं तो we will be getting 2A plus B plus C is equals to 25 और 8 33.33%। तो A प्लस बी प्लस सी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी आएगी वो आपकी आ जाएगी 16.66%। तो जो काम करने के दिन होंगे वो 16 6 है 96। अब टोटल वर्क वर्किंग टुगेदर 16.66 है, 100 डिवाइडेड बाय 16.66% अगर आप करेंगे तो आपको 6 डेज मिल जाएंगे। डायरेक्ट आंसर है 6 डेज, करेक्ट। तो एफिशिएंसी वाले मेथड से मेरा काम जल्दी हो गया। नेक्स्ट, अब ये है उस टाइप का क्वेश्चन जिसमें एक बंदा पहले काम करना स्टार्ट कर देगा, दूसरा बंदा बाद में आएगा। अब डायरेक्ट ए 12 डेज, बी 15 डेज। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं, वर्क हमारा 100% है, फिर से एफिशिएंसी ऑफ ए 8 12 से डिवाइड कर रहे हैं 8.33%। बी एफिशिएंसी ऑफ बी, अब तो बार बार वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। आफ्टर ए हैड वर्कड फॉर 3 डेज, तो अब देखें तो ए ने कितने दिन काम किया, 1 2 3। ए ने D1 काम किया, D2 D3। इसका मतलब है 8.33 इंटू 3, 25%। 25% काम ए ने अकेले किया। ए वर्कड अलोन 25% 3 डेज। अब फॉर द रिमेनिंग डेज, अब बाकी कितना काम बच गया, 100 माइनस 25% इज इक्वल टू 75%। 75% EA plus EB, which means efficiency of A plus efficiency of B is 15%. So days will be 5. The remaining work, in how many days the remaining work will be finished? Remaining work will be finished in 5 days. जैसे 75% को जो काम बाकी रह गया दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा 5 days. So B is the correct answer for this one. Next, अब आता है F and Z can do a piece of work in 12 hours if they work for alternate days and F starts work first. अब आ गया alternate day। alternate day में क्या होगा, इसमें भी सेम ही तरीका चलता है, पहले दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं और ये टीटा टाइप क्वेश्चन है, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो टोटल वर्क अब हम दोबारा से लेते हैं, टोटल वर्क इज इक्वल टू 100%। एफिशिएंसी ऑफ F 100 डिवाइडेड बाय 12 आपका 8.33%। efficiency of Z 100 by 15 which is equal to 6.66%. If they work for alternate days, suppose F start first F, next day D will start, then next F, then D. So it means in pair in 2 days they are doing 15% of the work. So they have to do 100% work to 15. If you see 100% divided by 15%, we are left with 16, 6, 10 by 15, 6, 2 by 3. Now this 6 is when they work together, but they are working separately for alternate days. They are working together, so it means 6 into 2. So the answer will be 12 days plus remaining 10% of the work will be finished in
how many days? If you see this, you are left with 10% of the work. 8% F will finish in 12 days. 12 days they can finish 90% of the work. On the 13th day, F will work and 14th day full won't be required. पूरा दिन नहीं लगेगा. The answer should be 13 point something. It can be 13.33 or 13 point something. That is 13 days plus. तो ये वाला क्वेश्चन ऑल्टरनेट डेज के क्वेश्चन ऐसे होते हैं. कई बार तीन लोगों का भी हो सकता है कि तीन लोग काम कर रहे हैं. अगर if there are three people, for example, we discuss if there are three people working alternately, तो इसमें क्या होगा? A, then B next day, then C. So three, you have to make group of three. Suppose they were doing 25% of the work, A, B, C. So in four groups, you can finish the task. 100% will be done. But in one group there are 3 days, so 4 into 3. So total days would be 12 in that case. तो ऐसे करके हमारा काम खत्म हो जाएगा. See, the next question is the similar one. You can go for this one, guys. Same A, B, and C. Again, I'll use the same method. Total work is equals to 100%. Efficiency of A is equals to 100 divided by 6, which is equals to 16.66. Then efficiency of B is equals to 8.33. Then efficiency of C is 12.5%. Now, combined efficiency of these three is 37.5. ठीक है. इनका अगर हम कंबाइंड एफिशिएंसी देखते हैं यहाँ पे, कंबाइंड एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 16.625 प्लस 37.5%. 37.5% होगी. It means if A is working, then B, then C. It means 37.5% of the work is done in 3 days. Then next 3 days, again 37.5% of the work. And now 75% of the work is done, then A and B. So A will cover 16.66, B will cover 8.33. It means 3, 3, 6, 7, 8. Right answer is 8 days. In 8 days, the whole work will be finished. Next, guys. A takes 6 days less than B to do a piece of, मतलब कोई भी certain job, and 2 days more than C. A and B can together do the same work in the same time as C. In how many days B alone can do the same task? अब जो ये वाला क्वेश्चन है, इधर यू कैन यूज ऑप्शन मेथड, इधर यू कैन. अब इसमें एफिशिएंसी मेथड उतना एफिशिएंट नहीं है. अब इसमें हम ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं और रेसिप्रोकल मेथड भी. लेट सपोज कि जो पूरा का पूरा कंपैरिजन है वो बी से है, तो बी टेक्स, लेट बी टेक्स एक्स डेज. so B's 1 day work. अब रेसिप्रोकल मेथड कैसे काम करता है वो भी देख लेते हैं. B's 1 day work is equal to 1 over x. So A takes, अगर B takes x days, then A will take x plus A takes 6 days less than B. तो ये हो जाएगा x minus 6.
तो बी ए का जो वर्क आएगा, एज वर्क इज इक्वल टू 1/x-6 एंड सी का कितना आ जाएगा। अब सी के जो डेज होंगे वो रहेंगे x-2 डेज मोर देन सी। 2 डेज मोर देन सी का मतलब x-6 था तो x-8 हो जाएगा। तो अब सी का अगर हम देखेंगे तो 1/x-8। अब अगर हम सॉल्व करने जाते हैं तो इट्स सिंपल। In how many days B alone A and B can do the work in the same time as C. So 1/x plus 1/x-6 is equals to 1/x-8 आ गया। अब ऑप्शन डाल के देखो कि कौन सा सेटिस्फाई कर जाता है। सीधा सीधा तरीका है, ऑप्शन एलिमिनेशन से यू कैन इजीली डू द क्वेश्चन। क्या आंसर आना चाहिए? अगर हम 12 रखते हैं तो 12 प्लस 6 और 4। अब ऑप्शन एलिमिनेशन अगर डाल के देखते हैं तो लेट्स चेक विद 12। 1/12 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/4 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, एलसीएम लेते हैं 12। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/4, तो इक्वल आया, तो 12 इज द करेक्ट आंसर। अगर आप 10 डालते तो नहीं होता, 14 डालते तो नहीं होता। और एफिशिएंसी मेथड में आएंगे तो इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी मेथड थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 100 तभी भी यही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 की जगह पे 100 आ जाएगा। 100/x+100 वो भी कॉमन लेके काट सकते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों मेथड यूज करोगे तो तरीका तो सेम ही रहने वाला है। चाहे ए वाला हो चाहे बी वाला हो, तो दोनों ही केसेस में आपका तरीका सेम रहेगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, when A and B C are deployed for a task, A and B together do 70% of the work and B and C do 50% of the work, who is the most efficient? अब C यहाँ पे कंपैरिजन है, A plus B do 70% of the work whereas B plus C do 50% of the work। अब अगर देख के अंदाजा लगाओ तो क्या होना चाहिए? अगर इस क्वेश्चन में अब अंदाजा लगाया जाए तो क्या आंसर आना चाहिए? लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन कुछ करनी नहीं है। अगर हम इक्वेशन को भी फॉलो करते हैं तो डायरेक्टली इफ यू सी तो क्या आएगा? अगर डायरेक्टली लॉजिक लगाओ, जहां पे बी आया वहां पे काम कम हो गया, करेक्ट। तो ऑब्वियसली जहां पे बी है वहां पे काम कम हुआ है, तो बी की स्पीड सबसे कम होगी। सी की वजह से ज्यादा हो गया, बट यहाँ पे ए प्रेजेंट है जिसका सबसे ज्यादा हो। तो अगर लॉजिक बेस्ड देखो तो ए डायरेक्ट आंसर है। बट अब अगर टोटल वर्क को देखो, अगेन 3 लोग काम कर रहे हैं, जो टोटल वर्क होगा ए प्लस बी प्लस सी वो कितना होना चाहिए? 100%। बट जब हम इक्वेशन कंबाइन करते हैं 1 और 2 को, तो वी गेट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 120%। करेक्ट। यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे वो पुट कर देते हैं, तो बी कितना आ रहा है? 20%। करेक्ट। अगर बी 20 आ रहा है तो ए कितना आएगा? 50%। और अगर बी ए बी आ गया तो सी कितना आएगा? 30%। तो हुई दी मोस्ट एफिशिएंट ए। लॉजिक बेस अगर बात करी जाए तो बी प्रेजेंट है इसलिए काम कम हुआ है, तो बी सबसे स्लो हो सकता है, सी ज्यादा। और ए की वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा काम हुआ होगा, तो ए 70% का हम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, S is 20% less efficient than K. If K can do a piece of work in 24 days, the number of days required by us to complete the same work alone is। अब S और K दो लोग हैं, S is 20% लेस देन A, तो एफिशिएंसी मान लेते हैं इसकी X है, इसकी कितनी हो जाएगी? 0.8x। करेक्ट। अब the number of days required by S to complete the same work alone, नंबर ऑफ डेज नहीं पता, करेक्ट। नंबर ऑफ डेज मिसिंग है, नंबर ऑफ डेज मिसिंग है K, but the number of days required by S to complete the same work, if A can do a piece of work in 24 days, ठीक है, तो 0.8 इसका पता है,
इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर आएगा 0.8x इंटू के इज इक्वल टू एक्स इंटू 24 एक्स एक्स गेट कैंसिल 0.8 इंटू के इज इक्वल टू 24 तो के कितना आ जाएगा 30 डेज तो कितना टाइम लगा इसको 30 डेज लगे काम करने में सिंपल अगेन मैंने एफिशिएंसी मेथड यूज किया और वर्क इक्विवेलेंस काम दोनों इक्वली करेंगे इस वजह से वर्क इक्विवेलेंस मेथड यहाँ पे भी काम कर गया नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 25 men can complete a job in 30 days. After how many days should the strength of the workforce be increased by 50 men so that work will be completed in two-third of the actual time? Two-third of the actual time मतलब 10 days में काम खत्म करना है. नंबर ऑफ मैन कितने बढ़ाए या कितने दिन के बाद बढ़ाए ठीक है तो उस तरीके से काम होगा guys you can go for it you can try it ठीक है अब देखो टोटल वर्क जो है हमारे पास वर्क इक्विवेलेंस मेथड ही हम यूज करने वाले हैं टोटल वर्क कितना हो जाएगा 25 इंटू 30 750 मैन डेज लगेंगे ठीक है आफ्टर हाउ मेनी डेज अब मुझे ये तो नहीं पता कि कितने डेज पे हमारा काम वो होने वाला है ठीक है और टू थर्ड मतलब आराम से कम कम होगा ठीक है अगर हम ऑप्शन कंसिडर करें तो कैसे करेंगे 25 इंटू 30 वर्क फोर्स बढ़ानी है 50 से करेक्ट तो 75 मैन हो जाएंगे अब लेट्स चेक विद ऑप्शन है अब ऑप्शन का यूज करके देखते हैं अगर हम पहले ऑप्शन ए यूज करते हैं तो 750 शुड बी इक्वल टू पहले तो 25 मैन ने काम किया होगा अब 25 मैन ने कितने का दिन काम किया होगा वी कैन चेक 25 इंटू 15 प्लस बाद में 75 इंटू 5 ऐसे करके भी चेक कर सकते हैं टू थर्ड ठीक है टू थर्ड ऑफ द एक्चुअल टाइम टू थर्ड ऑफ द एक्चुअल टाइम का मतलब हो गया 10 डेज में काम खत्म करना है करेक्ट तो अब इसको निकाल के देखते हैं अगर वर्क इक्विवेलेंस से सेटिस्फाई कर गया तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा हाँ ये आ गया 525 375 ये भी आ गया 300 तो 2060 तो आफ्टर 5 डेज आपके उन लोगों को हमें 15 डेज आपके वो लोग आ जाएंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा टू थर्ड ऑफ 30 तो 20 डेज में खत्म करना है तो 15 डेज के बाद आ जाना चाहिए इसलिए ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर अगर वन थर्ड होता तो 10 हो जाता वन थर्ड मतलब 10 डेज में खत्म करना है तो 10 डेज में खत्म करना है तो शायद 5 दिन के बाद ही बुलाना पड़ जाता चलो लेट्स ट्राई अगर हमें काम वन थर्ड ऑफ द डेज में ही खत्म करना है वन थर्ड डेज में अगर हमें अपना काम खत्म करना है तो हम कैसे करेंगे तो मतलब 10 डेज में करना है तो सपोज करो 5 दिन के बाद बुला सकते हैं 25 इंटू 5 प्लस 75 इंटू 5 नहीं होगा 75 इंटू 5 5 भी काम करेंगे तो भी नहीं होगा तो ये नहीं होगा नॉट पॉसिबल वाला केस है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगेन वर्क इक्विवेलेंस मेथड से करेंगे तो इजी हो जाएगा अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 120 डेज तो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन तो नहीं है नंबर ऑफ वर्कर्स को एक्स मान लेते हैं 120 इंटू एक्स टोटल वर्क विच शुड बी इक्वल टू अगर नंबर ऑफ वर्कर्स अब सेकंड केस 2 में अगर हम अपने वर्कर्स को बढ़ा देते हैं तो x प्लस 4 could be finished in 12 days less into 108 120x अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 120 माइनस 12x आएगा which would be equal to 4 into 108 तो x is equals to 12 9 the 36 तो जो एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स था वो कितना था आपका 36 था
देन आगे बढ़ते हुए, a certain job assigned to a group of men to do in 30 days, but 12 men did not turn up. सेम तरीके का क्वेश्चन है. And the remaining men did their job, the original number of men. अब ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन तो हमें नहीं पता. अगर हम ओरिजिनल नंबर को अगर हम फिर से x मान लेते हैं, ठीक है, लेट द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू x 20 days, तो एक्चुअल में उन्हें लगने थे x इंटू 20, बट 12 मैन डिड नॉट केम, तो x माइनस 12 इंटू 32. यहाँ से फिर से x की वैल्यू निकाल लो, तो 12x, अब 32x 20 के आएंगे 12x, 32 इंटू 12, तो x कितना आ गया आपका 32. अब ये वाला क्वेश्चन देखा जाए, ये एफिशिएंसी मेथड से करने में फायदा कैसे, एफिशिएंसी ऑफ ए निकालते हैं डायरेक्ट. 15 डेज टोटल वर्क हमें पता है कितना होगा 100%, ठीक है. एफिशिएंसी ऑफ ए 15 डेज, तो एफिशिएंसी ना सॉरी नंबर ऑफ डेज इज 15, तो एफिशिएंसी ऑफ ए 6.66%. एफिशिएंसी ऑफ बी 5.55%, and efficiency of C we don't know, let it be X, but सारा काम 6 दिन में खत्म हो गया, तो इट मीन efficiency of A plus efficiency of B plus efficiency of C should be equal to 100 by 6. तो EA plus EB plus EC is equal to 16.66%. करेक्ट. अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ से efficiency of C निकल जाएगा 5 6 5 11 6 5 11 11 2 12 point something. So efficiency of will be 5 4 and 12 4.45%. Correct. ये हो गया एफिशिएंसी ऑफ सी. अब किससे मैच कर रहा है, ऑब्वियसली 25 डेज हो नहीं सकता, 45 बाय 2 इज 22.5, बी का है 22 और ए का है 30 डेज, तो कितना आना चाहिए सोचो. कितना आएगा जल्दी बताइए. The correct answer is 45 by 2 days, which is 22.5. क्योंकि 22 4 द 22 to 4 88 होगा. 22 डेज को अगर तुम 0.5 से भी मल्टीप्लाई करो तो 11 तो यहाँ से आ जाएगा, तो 99% तो हो ही रहा है, इसलिए 45 by 2 days इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, and guys this will be our last question and then we will be finishing the session. अब ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days. अगर फिर से हम अपना पुराना वाला तरीका अप्लाई करें टोटल वर्क वाला, तो टोटल वर्क वाला कितना हो जाएगा 100%. एफिशिएंसी ऑफ ए 6.66, एफिशिएंसी ऑफ बी 2 6 12 3 13.32%. A started a work after they completed the work in 11 days from starting. For how many days they worked together? अब टोटल वर्क अगर आप देखो दे कंप्लीटेड द वर्क इन 11 डेज. अब सोचो कितने दिन आपको काम करने में लगेंगे.
दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी, ए प्लस ई बी। EA plus EB is 6289 19.98%। तो एक्चुअली इसको अगर 20% भी मान लें तो अगर ये लोग कितने दिन साथ में काम करेंगे सोचो। अगर चलो सपोज करो अगर एक दिन काम करते हैं, लेट्स टेक द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। अगर एक दिन दोनों मिलके काम करते हैं तो 20% काम होगा, तो बाकी के 10 दिन में ये 60% 66 काम करेगा, करेक्ट। तो ऑप्शन ए डेज। अब ऑप्शन बी पे जाते हैं, 2 डेज। कंबाइन करके अगर ये काम करते हैं तो 40% काम होगा। बाकी कितने दिन बचे, 9। 9 दिनों में ये कितना काम कर लेगा, 9 अप्रोक्सीमेटली 57 पूरा हो ही जाएगा अगर ये अकेला भी काम करता है। तो इसलिए बी इज द राइटर। और अगर इस पे जाते हैं 5 डेज दे वर्क टुगेदर, तो 5 दिन में सारा काम हो जाएगा, तो ये अकेले काम करेगा ही नहीं। 6 भी फेल हो जाता है, ये भी फेल हो जाता है। तो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ डेज which are left is 2, which is correct. So thank you guys for attending the session, and you can follow an academy catalyst. Please hit the like button and subscribe the channel again, and you can follow me on an academy app. I'm Shashant Rathod. Thank you.